Hello students, good afternoon everyone. Today I am going to start real number and in this order. First we discuss about real numbers and then theorem. So students, you have studied about real number in your previous classes and also about natural numbers, whole numbers and so on. So let us recall them one by one. Number first, natural number. You know that the number starting from 1 is called natural number. For example, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These type of number are said to be natural number. इसमें आप सभी जानते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसे आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम होल नंबर की बात करें तो ऐसी नंबर जो 0 से स्टार्ट होती हों उन्हें हम होल नंबर कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लें तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। और द नंबर starts from 0 are said to be whole number, and whole number is represented by capital W. Similarly, if we write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and so on, so these numbers are called whole number. Next, integers. You know that integers are those numbers which have complete in itself, that are not a part of a whole. For example, -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3 and so on. So these type of numbers are said to be integers. Okay. Next, rational number. You know that the number of the form of p upon q, where p and q are integers and q not is equal to 0, are said to be rational number. Example, 1 upon 2, 1 upon 3, -3 upon 5, 0 upon 3 or 0 upon 5 are said to be rational number. Okay. So it means in this chapter we will study about more about real numbers and some methods about them. So this is the theorem number 1.1 and it is known as Euclid division lemma. This is called Euclid division lemma. Friends, you know that here is a word lemma. So first of all, I explain it. Lemma is a proven statement. Lemma is a proven statement. On the basis of this statement, we can prove more results. Friends, लेम्मा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मीन्स पहले से सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसके बेस पर हम दूसरी चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं. ओके. और यूक्लिड, यू नो दैट अबाउट यूक्लिड, ही इज अ ग्रीक मैथमेटिशियन.
So first of all, we talk about Euclid division lemma. Given positive integers a and b, there exist unique integers q and small r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 but less than b, and this is known as Euclid division lemma. So Euclid division lemma is a technique to find out the SCF of any two integers or given numbers. Okay फ्रेंड्स, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एक ऐसी टेक्निक है जिसके आधार पे हम किन्हीं दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से स्मॉल c एंड स्मॉल d with c is greater than d, follow the step below. ओके, तो स्टूडेंट्स किसी भी दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम निम्न स्टेप को फॉलो करते हैं, यानी इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है जिसको हम इन्हीं स्टेप के थ्रू फाइंड करेंगे. तो लेट c and d, these are two numbers. We need to find the SCF of c and d where c is greater than d. स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि c और d कोई दो ऐसे नंबर हैं जहाँ पे c d से बड़ी हो, तो हमें अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. तो स्टेप नंबर फर्स्ट, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू c एंड d. तो सबसे पहले हम c और d का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करते हैं, और इसमें हम एक ऐसी होल नंबर को फाइंड करने का प्रयास करेंगे जिसे हमने यहाँ पे q और r से रिप्रेजेंट किया है. यानी एक ऐसी हम होल नंबर यहाँ पे प्राप्त करेंगे जिसे हमने q और उसका जो रिमाइंडर आएगा उसे r से हमने इंडिकेट किया है, और इसे हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. मीन्स आप सपोज कीजिए जैसे आपको c और d इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे और जहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करना है, और इसके अलावा इन दोनों नंबर्स में हम सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर. c और d में बड़ा कौन है या छोटा कौन है. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे c d से बड़ा है, तो d से हम c को डिवाइड करते हैं, और d से जब हम c को डिवाइड करेंगे तो हमें निश्चित तौर पे कोई ना कोई कोसेंट मिलेगा. उस कोसेंट को हमने यहाँ पे स्मॉल q से इंडिकेट किया है, और उस कोसेंट के अलावा कुछ रिमाइंडर भी आपको मिलेगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, या इसके अलावा कोई और भी हो सकता है. तो जब हम d से c को भाग देते हैं तो q हमें कोसेंट मिलेगा और r रिमाइंडर होगा, और इसी के बेसिस पे हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस r के रूप में डिफाइन करते हैं, जहाँ पे r की जो रेंज है वो 0 से d के बीच में होगी. इट मीन्स रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है कि वो d से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर के बराबर या उस नंबर से ज़्यादा कभी भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है. तो इसलिए हम r की रेंज यहाँ पे फिक्स करते हैं कि r इज़ ग्रेटर दैन r इक्वल टू 0 बट लेस देन d, मीन्स डिवीजन. ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, इफ वी फाइंड r इज इक्वल टू 0. अगर हमें r की वैल्यू 0 के बराबर मिलती है, इट मीन्स रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो इस केस में d जो हो जाएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा c और d का. ओके, इफ r इज इक्वल टू 0 then d is the SCF of c and d.
But if r is not equal to 0, in that case apply the division lemma to d and r. अगर मान लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो तो उस केस में हम दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं d और r के लिए। d और r मीन्स इस बार हम d को, जो हमारा डिवीजर था पहले, इस डिवीजर को हम रिमाइंडर यानी r से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस केस में, अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो ये d जो हमारा डिवीजर था वही हमारा एससीएफ हो जाएगा। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हमें दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा d और r के लिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं d और r के लिए क्योंकि हमें d को इस बार r से डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर था उससे हम d को डिवाइड करेंगे, और जब हम d को r से डिवाइड करेंगे तो इस बार भी कोई ना कोई कोसेंट हमें मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो हमें ऐसा ही प्रोसेस तब तक जारी रखना है, तब तक करते रहना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में जो हमारा डिवीजर होगा, मीन्स जिससे हमने डिवाइड किया था, वही डिवीजन उस नंबर का एससीएफ कहलाएगा। ओके, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। तो फॉलो these steps you can find SCF of any two given number by Euclid division lemma. Okay friends, so this is theorem number first, Euclid division lemma. You understand? If you have any doubts or any questions or any query, you can ask me my WhatsApp number. Thank you.